معموری کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے روح القدس کیا ہے اور اس کی معموری کیا ہے۔ جب تک ہم روح القدس کو جان نہیں جاتے، سمجھ نہیں جاتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم اس کی تڑپ اور پیاس نہیں رکھتے، ہمیں کیا خبر کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کچھ لوگوں کے دھیان ابھی تک گھر میں ہے، کام کاج میں ہے، کچھ لوگوں کے دھیان گیان ہے عبادت لمبی نہ ہو جائے، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ کچھ لوگوں کے اور خیال ہے میں نے کہیں جانا ہے، عبادت لمبی نہ ہو جائے۔ جب یہ خیالات ہمارے دل میں ہوں گے تو کیا روح القدس ہمیں ملے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں، جا پر آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہے، آپ راستے میں 10 لوگوں سے ملے، کیا آپ ٹائم پر پہنچ پائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کا وقت گھٹتا جائے۔ اسی طرح جب تک آپ کے ذہن میں خیال وسوسے ہوں گے، روح القدس آپ کو نہیں چھوئے۔ روح القدس جب تک آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، روح القدس آپ میں نہیں آتے۔ ہمیں کلام میں تو لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا پاک روح تم میں بسا۔ پہلے ہمیں جانچنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا بدن، ہمارا یہ بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ اگر ہے تو روح القدس کو روکنے والی کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ ہمارے سوچ، دھیان، خیال، ارادے، کرتوت روح القدس کو روکتے ہیں کہ ہمارے بدن میں داخل نہ ہو۔ آئے میرے ساتھ نکالے ذرا روح القدس کے نزول کے بارے میں۔ ہمیں اعمال 2 باب پڑھیے جی، پہلی آیت سے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی۔ آندھی نہیں، صرف آندھی، زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولے ہاللویا، بولے ہاللویا۔ آج چرچ میں روح القدس کے بارے میں منادی ہو رہی ہوگی، بہت کلام سنایا جا رہا ہوگا، لوگ ٹس سے مس نہیں ہے، لوگوں کو روح القدس کے بارے میں انکریجمنٹ نہیں ہے، لوگوں کو روح القدس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ سنا ہے روح القدس کے بارے میں، تجربہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے۔ روح القدس ہے کیا؟ روح القدس کیا ہے؟ یہوہ پاک خدا کا پاک سانس ہے روح القدس۔ جب اس نے آدم کا مٹی کا بت بنایا تو لکھا ہے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، بولے ہاللویا۔ روح القدس زندگی، سن لیجیے، روح القدس زندگی ہے۔ روح القدس دوسرا مددگار ہے، روح القدس قوت ہے، روح القدس قوت ہے، روح القدس قدرت ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے ہم
फॉर्मूला पाई गई। रूह कुछ एक कुदरत है, रूह कुछ एक कुवत है, रूह कुछ दूसरा मददगार है, रूह कुछ शिफा है, रूह कुछ भेद की बातें आपके अंदर खोलता, मुकाशफा की बातें। रूहुल कुछ खुशी है, रूहुल कुछ खुशी है, रूहुल कुछ इम्तियाज करता है, रूहुल कुछ इम्तियाज करता है। सुन लीजिए, इम्तियाज करना सिखाता है। रूहुल कुछ अच्छा टीचर है, अच्छा प्रीचर है, और हमारा सबसे अच्छा हीलर रूहुल कुछ है। क्या खुदा के पाक रूह की कुदरत से मोजज़े वकूफ़ पज़ीर। रूह के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, रूह के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। रूह के बगैर मुनादी की बातें करना चला जाऊं तो 3 घंटे लग जाएंगे। लोगों को इम्तियाज ही नहीं, चिट्ठियां खोपड़ियां, ते रूह दा इम्तियाज है। रूह इम्तियाज सिखाता है, छोटे बड़े का इम्तियाज, खुदा का इब्लीस का इम्तियाज, इल्हाम का इम्तियाज, खुदा के कलाम का इम्तियाज सिखाता है। कौन? बस करिए, नींद तो नहीं आई? नहीं। बोलो कौन? रूहुल कुद्स। ये सब कुछ वो सिखाता है। आमीन आमीन। फिर रूहुल कुद्स हिकमत देता है। हिकमत के खजाने उसी में पोशीदा है। आमीन आमीन। रूहुल कुद्स हमें क्या देता है? हिकमत देता है, दानाई देता है, अक्ल देता है। कलाम में क्या लिखा है? उसी ने इस जहां के कमीनों को, बेवजूदों को, कम अक्लों को चुन लिया कि हद से ज्यादा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिले। बोले हालेलुया। ये है रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स अकल देता है, अकल देता है। अकल क्या होती है पता? चलो हम इधर नहीं जाते, हम अपने रोड पे रहते हैं। अकल देता है, रूहुल कुद्स सलामती देता है। मैं आपको खुदा के रूह के हवाले करता हूँ जो आपकी कांट छांट करता, आपको तरबियत नसीहत देता, आपको रोड एक्सीडेंट से बचाता। इब्लीस आपको मारना चाहता, हलाक करना चाहता, आपके घरों की बर्बादी करना चाहता, लेकिन अगर आपके घर में रूहुल कुद्स है तो सलामती है। चेक कीजिए, रूहुल कुद्स सलामती है जी। रूहुल कुद्स क्या है? सलामती है। रूहुल कुद्स सुलह है। क्या है? सुलह है। रूहुल कुद्स यीशु मसीह है और वो सुलह और सलामती का शहजादा है। रूहुल कुद्स सुलह है जी। सुन लीजिए, रूहुल कुद्स सुलह है। मैंने ऐसे ऐसे चर्चेज ऐसे मना देखे, 2 भरा सके लड़े ने, तू भरावां दा कोई पादरी भंग पी के सुलता, सुलह नहीं करानी। किथे जे रूहुल कुद्स लगो? सुलह का शहजादा रूहुल कुद्स सुलह है। जिसके पास खुदा का रूह है उसकी सुलह है। हर बशर के साथ कोई उसको तंग करे, कोई ना करे, कोई उसको बुरा कहे, अच्छा कहे, उसकी सुलह है। रूहुल कुद्स क्या हुआ? सुलह है। आमीन आमीन। रूहुल कुद्स बरकत है, ऐसी बरकत जिसको पाकर, ऐसी बरकत जिसको पाकर जमीनी आसमानी बन जाता है।
گلیاں تے سڑکاں تے پھرنے والا روح القدس کی برکت ایسی برکت ہے جب کسی کو ملتی ہے وہ آسمانی بن جاتا ہے. بولے ہاللویا، بولے ہاللویا. یہ ہے روح القدس. میں اسی لیے محنت کرتا ہوں آپ پہ، آپ کو روح القدس مل جائے. آپ کو بتا دے گا کل آپ کا بھائی، آپ کا ابا، آپ کا ڈبا کیا کرنے والا ہے، چاچا کیا کرنے والا ہے، کل بیٹا کیا کرنے والا ہے، بیٹی. روح القدس آنے والی باتیں، خبریں آپ کو پہنچائے گا. وہ دوسرا مددگار ہے. اس کے بغیر ہم زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. ہم نکمے ہیں، کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس ملے تو یروشلم، یہودیہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. ہاللویا. میں آپ کو بتاؤں جس کو روح القدس مل گیا اس کے سامنے تلوار ہو، اس کے سامنے کچھ بھی ہو، وہ یسوع کی گواہی دینے سے شرماتا نہیں. تو سانوں دے پتہ نہیں کیڑا روح ہے، سمجھ نہیں ہوندی. میں ایسے سے پادریاں نوں روح ملیا ویکھنا خسریاں نہ نچدے پھرتے، کوٹلائی پھر دے، سگٹا پیوی پھر دے. تم خدا کا مقدس ہوئے، خدا کا مقدس تے نچے خسریاں نا تے پیوے شرابہ تے سگٹا. میرا کدھر نہ جانا ہوا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو لیجیے. میں اپنے عزیزوں کی شادی ایک بھائی نے ایک پالی سے بپتسمہ لیا، بعد روح القدس کیا کر لوں گا، ضرور چھوڑوں گا نہیں. آدھا گھنٹہ وہ دونوں پاسٹر صاحبان اور تیسرا میں بھی وچ بیٹھا آندے نے انہاں دوواں بھراواں نوں روح القدس ملیا. اوتھے اسے ٹینٹ چ بیٹھے ویکھو کیڑا روح القدس ملیا. ادھے گھنٹے بعد مہندی شہدی مک گئی، خسرے آ گئے. وہ دوئے بھرا پی کے تے ویلا کراندے پھردے خسرے. میں پوچھا پاری صاحب کیڑا روح ملیا جے انہاں نوں، ذرا مینوں بھی دسے. آپ ابھی تک کسی طرح روح القدس سے پیچھے، آپ آج تک کسی طرح روح القدس سے بے بہر ہیں، بے سمجھ ہیں. روح القدس آپ کو چھوتا، آپ کے اندر نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ وجہ کیا ہے بتائیے؟ وجہ کیا ہے؟ روح القدس کو اندر رکھیں. آپ روح القدس کے مطابق چالنے کی، روح القدس کے مطابق زندگی نہیں. جب روح القدس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے. یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں لوگوں کو. آج عید پینتیکوس ہے، جب روح القدس کا نزول ہوا. آپ میں سے ہر ایک کو روح القدس مل سکتا ہے اگر آپ اس کی تڑپ رکھیں گے، اس کو مانگیں گے، اس کے لیے اپنے اس بدن کو تیار کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا. میں تمہیں دوسرا مددگار دیے جاتا ہوں، پہلے وہ تمہارے ساتھ تھا، پھر تمہارے کی ہوئے گا. اندر جے ہون گالا سگٹا توکا فریب ناچ رنگ کیا کچھ ہو، یہ سارا کچھ اندر ہو تو کون سا روح القدس اندر آئے گا؟ انہاں پادریاں نوں تے انہاں لوکاں نوں پوچھ کے مینوں بھی دس چھڈے او کیڑا روح القدس انہاں دے اندر آئے گا، مینوں بھی دس چھڈے. تہاڈی بڑی مہربانی. مجھے تو سمجھ نہیں آتا، لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے. روح القدس کیا ہے؟ برکت ہے. یہ بات برکت سے آگے بڑھی. اور روح القدس کیا ہے جی؟ روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے.
रहनुमा है, रूहुल कुद्स रहनुमा है। आप भी कुछ बताएं और क्या क्या है रूहुल कुद्स? आप लोग कब से निजात पा चुके हैं, कलाम पढ़ते हैं, और क्या है रूहुल कुद्स? कुव्वत है रूहुल कुद्स। जो पहले बताया वो नहीं बताना जी। पावर है, ताज़गी है, शादमानी है, आंखों की ठंडक है, आंखों का नूर है। रूहुल कुद्स क्या नहीं है मुझे ये तो बता। रूहुल कुद्स वो सब कुछ है आपके लिए जिसके आप आसमानी शहर में जाने के मुश्ताक हैं। वो सब कुछ है रूहुल कुद्स, और वो सब कुछ आपको बताता और सिखाता है। हमारे बड़े दावे हैं, हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं, और हम सीधी चाल में चलते। हवाले बहुत सारे पढ़िए, एक हवाला जरा। अभी तो हमने सीखा कि रूहुल कुद्स क्या, अब हम जरा देखें रूहुल कुद्स के बारे में। इफ्सियों 2:22 है, जरा जल्दी से पढ़िए। जी, और तुम भी उसके बहम तमीर किए जाते हो, और तुम भी उसमें बहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में उस खुदा का मस्कन बनो। फिर से पढ़िए। और तुम भी उसके बहम तमीर किए तुम भी उसमें बहम तमीर किए जाते हो, किसमें? यीशु मसीह में जी। ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हम यीशु मसीह में तो तमीर नहीं होना चाहते। हमारे पास इतने करतूत हैं, इतनी बातें, इतने काम है, जो यीशु मसीह को हमारे साथ पवित्र एक होने ही नहीं देते। हमें इन कामों को छोड़ने की जरूरत है। इफ्सियों पहला बाब 17 आयत पढ़े जरा। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बादशाह है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। और मुकाशफा की रूह बख्शे। हमें चाहिए ही नहीं। वो इतने ते लोग एडे सियाने जे राती बपतिस्मा लेंदे जे सुबह हाफिज बन जाते जी। इधर कीजिए क्या, फिर से पढ़िए बुलंद आवाज से। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह और बख्शे। मुकाशफे की रूह बख्शे। खुदा की पहचान चाहते हैं तो मुकाशफे की रूह लीजिए, हिकमत की रूह को अपनी जिंदगी में, खैरत की रूह, हिकमत की रूह, अलमियत की रूह, मसलहत की रूह, ये सारी खुदा के साथ हुए जो सारी जमीन पर भेजी गई है। लिखा है यशाया में भी। हाँ जी, चलो खाना पूरी हो। हाँ जी सुनिए, बाइबल में उसका कोई हिस्सा नहीं है। आप में से जो भी चर्च है खाना पूरी करके चला जाए। कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं है तो खाना पूरी सुन लीजिए। अगर आप पहचान चाहते हैं यीशु की, चाहते हैं कि आप जिंदगी में खुशहाल हैं, आपको रूहुल कुद्स में, तो फिर मुकाशफे और हिकमत की रूह को अपने लिए मानना शुरू करें और उसको हासिल करने की कोशिश करें। जी दूसरी आयत मैंने कौन सी बोली थी? 1:17 हो गई। पहला पत्र जरा निकाल लीजिए जल्दी से। पहला पत्र दूसरा बाब 11 है। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी पहला पत्र 2 बाब जी पढ़िए। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। हालेलुया।
सुन लिया जे जिस्मानी ख्वाहिशां रखने वाले हो अगले दिन अंडे मार मार के काफरों की रस्म अदा की केड़े तुसी जिस्म दे लोग हो केड़े तुहाडे मनाज ने जाहिल जेड़े तुहानू इहदे कलाम दसदे ते इहदियां रस्मां करनियां दसदे जिथे होवे हट्टे कट्टे रल के अंडे मारे अंडे ते नफरत की निशानी जे कोई वजीर काम ना चंगा करे वो अंडे मार दे पढ़िए फिर से राम से मैं पढ़ूंगा जरा सुनिए ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ सुन लीजिए मैं भी यीशु को एलजी होते हुए आज जेड़े लेट आउंदे हो ते कलाम दे मुताबिक नहीं चलते मिन्नत करता हूँ हाथ जोड़कर ये समान पर आपको दिखाए जाएंगे इस डेट में इस दिन हाथ जोड़े गए सीधी चाल नहीं चलता उधर कोई खुदा ने कलाम से हिस्सा नहीं है उसका आसमानी शहर में कोई हिस्सा नहीं है ऐ प्यारो मैं तुम्हारी को तनख्वाह दे देता यहाँ एक कलीसिया पत्रस तनख्वाह दे दी और मिन्नता कर रहे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जिस्मानी ख्वाहिशों तो जिस्मानी ख्वाहिशें क्या करती हैं और क्या करती हैं क्या करती हैं रूह से लड़ाई रखती है तो ये रूह ना लड़ाई करने वाले बन जाओगे और रूह ना लड़ाई करने वाले बन जाओगे तो रूह मिलेगा जी मिलेगा नहीं जी जोर से बोलो मिलेगा नहीं जी रूह से सुलह कर लीजिए रूह की जगानगत में बन जाइए रूह से लड़ाई रखेंगे तबाही या बर्बादी एंजी रहेगा सारी उम्र एंजी एंड ते सिर लाख कुबाओ रूह से लड़ाई रखें जिस्मानी ख्वाहिशों से क्या करें परहेज करें जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है लेकिन साथे नहीं करना मैं मना कर बैठा पुत्रा बपतिस्मा ले आई ते फिर पादरी साहब अंकल जी की करिए साडे भरा दा विआह है ते भरा दा विआह पीण तो बगैर ते खुसरे नचाण तो बगैर विआह नहीं हुंदा हुंदा कि नहीं हाथ खड़े करो जेड़े अंदर हुंदा अजरा वीडियो बनाओ हां हुंदा हां जी खबरदार ते जे आज तो बाद कीता जे हाथ पे चुके ते मुजरम नहीं आते सुन लिया जे ना ये जिस्मानी ख्वाहिशें इनसे भागो तबाही कर देंगी बर्बादी कर देंगी सत्यानाश कर देंगी रोंदे फिरोगे मैंने आपको बड़ी दफा बताया बार बार वही बातें दोहराने को मेरा दिल नहीं करता लेकिन मजबूरी बन जाती है कलाम आ रहा होता है खुदा कलाम कर रहा होता है आज ही पेंतिकोस्त चाहिए तो ये था हम रोजा रख के आते रोजा रख के उसके हुजूर रोजे की किसी को फिक्र नहीं हमें बरकतें चाहिए हमें कारोबार चाहिए हमें गाड़ियां चाहिए हमें बंगले चाहिए हमें रूह नहीं चाहिए हमें रूह नहीं चाहिए अगर रूह नहीं चाहिए तो ये सारी चीजें बेफायदा रूह के बगैर ये सारी चीजें कलाम में लिखा है कि अगर कोई सारी दुनिया हासिल करे तो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा कोई फायदा होएगा जी कोई कोठियां बंगले बैंक बैलेंस गाड़ियां अगर एंड पर दोजख में चले गए तो कुछ फायदा अब मैं एक आखिरी बात करने वाला हूं जरा होशियार होकर बैठ जाए सुनिए जी गौर लिसन टू मी केयरफुली होकर सुनिए
पढ़िए जी आखिरी वाला निकालिए, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 8 बाब और उसकी 9 आयत से। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए जरा ठहरा खा के। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आगे, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं, कांटा है जिसमें यीशु का रूह नहीं, वो उसका नहीं। फैसला आपके हाथ में। रूह कुछ के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास यीशु मसीह का रूह नहीं है, आपके पास यीशु का रूह नहीं है, तो आप बिल्कुल उसके नहीं हैं। क्या पढ़ा है हमने? जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। फिर की करिए हो ना, बड़ा औखा सवाल हो गया। की करिए, बताएं क्या करें, मैं बताएं। हमारे तो आबा अजदाद इसी तरह मर गए बगैर खुदा के रूह के, लेकिन आप जो जिंदा हैं, आपसे कलाम किया जा रहा है, खुदा के पाक रूह को अपने अंदर बुलाएं, कहें, दावत दें। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के हो जाएं, तो उसके रूह को उसको अपनी जिंदगी में डालें, क्योंकि कलाम तो साफ कहता है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। की करिए, बड़ा रोना जे दिल करता है सिर नूं पिटिए। इत्थे पंगी भी आंदे ने साडे को रूह है, 2-2 बीवियां रखना है, पादरी आंदे साडे को रूह है, गवाइए कुड़ियां नूं छेड़न ले आंदे साडे को खुदा दा रूह है, इश्क मशूकियां करने वाले आंदे साडे को खुदा दा रूह है, सिगटा पीने वाले आंदे साडे को खुदा दा रूह है, फिल्मां ड्रामे वेखण वाले आंदे साडे को खुदा दा रूह है। ओ किहड़े खुदा दा रूह जे पुछ के ते दस्सो। मैंने पहले भी कहा, कलाम में तो लिखा, जिसके पास मसीह का रूह नहीं, वो इम्तियाज ही नहीं है, अन्य राजा काना ते 2 नंबरी सियाना। बस जेंदे आप ही होंगे हो, किसी की जरूरत जितने फिरते यहाँ पे आके गल करवानी जगह बाहरों सामने तो करवा लो। हाँ जी, इम्तियाज होना चाहिए, इम्तियाज का रूह, परखने का रूह, परख ही नहीं है। खुदा का रूह है कि नहीं? खुदा का रूह इम्तियाज देता है, पहचान देता है, हिकमत देता है, दनाई देता है, कुव्वत देता है, बरकत देता है, सलामती देता है, फतह देता है, भेद को खोलता है, मदद करता है, रहनुमाई करता है, गाइड करता है, लीड करता है और शिफा देता है। ये खुदा का रूह करता है। हमें तो फिर ऐसी रहना है कि मसीह दे बनना है। किने मसीह दे बन हैं? देखो मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। सुन लीजिए, अगर मसीह का रूह नहीं है तो अभी तक आप मसीह के नहीं हुए। मसीह तो है लेकिन मसीह के नहीं हुए, मसीहत में तो है लेकिन मसीह के नहीं हुए। मसीह के आप उस वक्त होंगे जब मसीह का रूह आपके अंदर होगा।
नबियों में भी मसीह का रूह पतरस के खत में लिखा है। मसीह का रूह जो नबियों के अंदर था, जो उसके आने से पहले उसके दुखों की पेशन गोई कर रहे थे। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो फिर कितना जरूरी है हमें खुदा के मसीह के रूह को अपने अंदर लेना। रूह को ले लीजिए। आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, घर के लड़ाई झगड़े, किचन की परेशानियां, कारोबार की परेशानियां खत्म होती जाएंगी अगर आप रूह को ले लेंगे। मुझे तो उस वक्त शर्मिंदगी होती है, मुझे तो उस वक्त शर्मिंदगी होती है और मुझे अपने आप पे बड़ा गुस्सा आता। मैं किसी पर क्या कर सकता हूँ? जब हमारे बपतिस्मा याफ्ता, निजात याफ्ता बेटे और बेटियां जाकर टप्पे, नाच, डांस में शामिल हो जाते हैं, ये जहालत नहीं है तो क्या है? ये बर्बादी नहीं है तो क्या है? ये कबाहत नहीं है तो क्या है? क्या है ये मुझे बताए, कोई एक उठ के बताए ये क्या है? ये खुदा के कलाम के मुताबिक, ये खुदा का रूह आपके अंदर है, मांगा ही नहीं, पाया ही नहीं, मिला ही नहीं। क्या हमें सजा हुई है? हम इन बातों से दूर हैं। हमें खुदा का रूह मिला है, हमें इस बातों से दूर रहना है। इन बातों से दूर रहेंगे। कलाम में क्या लिखा? इसने कहा अब अगर तुम मेरी बातों पर, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शागिर्द हो। तो केड़ी शादी ब्याह ते लिखा